السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جناب حضرات، میں آج آپ کو دیوبند کے ایک بہت بڑے ہمار جی سے ملاتا ہوں، ان کی میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں۔ آپ ان کی گفتگو شروع سے لے کے آخر تک سنیں اور دیکھیں کہ یہ اپنی باتوں میں کس طرح پلٹی مارتے ہیں، کس طرح ہاں کرتے ہیں، کس طرح نہ کرتے ہیں۔ یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 اس کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے جناب حضرات، انشاءاللہ پارٹ 2 میں اس آڈیو کے بعد آپ کو سنواتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ پارٹ 3 اور پارٹ 4 بھی آ جائے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس آڈیو کے بعد، اس کو سننے کے بعد شاید وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی نہ ہو، اور اگر راضی ہو بھی گئے تو پھر وہی اول فول ان کی بھی چالو ہو جائے گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہی تو ہے، وہی تو آ رہا ہے فون۔ ہلو، ہاں جی، ہلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ ہم مولانا بول رہے ہیں سنجو سے، جھارکھنڈ سے۔ اچھا مولانا صاحب جھارکھنڈ سے۔ جی آپ کا مسلک؟ مطلب میرا سنی ہے۔ مطلب کون سے والے سننی؟ آپ مولانا ہے نا؟ ہاں جی ہیں۔ تو کون سے والے سننی ہے؟ کون سی جماعت ہے آپ کی؟ جماعت سنت والجماعت۔ اس کی پہچان کیا ہے آج کے دور میں؟ کیا پہچان رہے گا؟ سنت کے طریقے پر جو چل رہا ہے وہی پہچان ہے، اور کیا رہے گا؟ کس لیے آپ نے تو کال اس کا کیا؟ نشانی تو نہیں ہے حضرت، جی کوئی نشانی تو نہیں ہے حضرت۔ کہنے کا مطلب ہے سنت کے طریقے پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہے وہی سنی کہلائے گا۔ ہر ایک دیوبندی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیوبندی؟ ہاں اچھا، کس لیے میرے پاس کال کیا آپ نے جناب دیوبندی مولانا صاحب؟ ہاں، کال ہم نے کیا ہے کہ تھوڑا سا بات آپ سے کرنی تھی، وقت ہے نا بس؟ جی ہاں الحمدللہ، وقت نہیں بھی ہوگا تو آپ کے لیے ضرور میں وقت دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ تھوڑا سا بات یہ ہے نا، رات میں بات ہوئی تھی، ہمارے گاؤں کے ایک لڑکا ہے اچھا احمد نام کر کے، اسی سے تو بول رہا تھا نا کہ آپ لوگ سلام کلام نہیں کرتے ہیں۔ ہم بولے کہ سلام کلام کسی نہیں کرتے ہیں، سلام کلام نہیں کرے گا تو مسلمان کہاں رہے گا؟ ہم بولے کھڑا ہو کر کے ہم لوگ جب کرتے ہیں تو آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو ہم بولے کھڑا ہو کر کے کرنا ضروری تھوڑی ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں آپ، کوئی منع تو نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں وہ بولے نا ہاں کہ ہم کو مولانا سے، کیا نام ہوا آپ کا؟ جی جناب، اس گنہگار کا نام ہے نور حسن۔ ہاں اچھا، نور حسن صاحب تو گنہگار مت کہیے، ایسے کہہ بولتے ہیں؟ گنہگار تو سبھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سارا جہان گنہگار ہی ہے، کیا کہ ہر وقت ہم لوگ گناہ کا پتلے ہی ہے، سمجھیے، ہے نا؟ تو اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ ہم کرنے کے بارے میں، وہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ قیام کرنے کے بارے میں؟ ہاں کچھ روشنی ڈالتے، کیا اس میں کریں گے تو میں نے کیا سمجھ کے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو کیسے نہیں کرنا ہے؟ کس طرح کا قیام؟ کیسا قیام؟ وہی میراث شریف میں جو بولتے ہیں کہ نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، کہتا ہے۔ کس نے کہا کہ قیام نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا؟ احمد نام کر کے ہے ادھر کا، سیدھے کا، وہی بات بول رہا تھا۔ خیر آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں، ہاں مین مدے پر آئیں۔ دیکھیے جی، میں بتاؤں آپ کو، ہاں، ہمارے کسی علماء نے یہ کہا کہ جو قیام نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں جب کہا۔ ہمارے علماء نے نہیں کہا تو علماء کی بات مانی جاتی ہے یا عوام کی بات مانی جاتی ہے؟ نہیں تو ہم تو علماء کی بات مانتے ہیں، آپ کی بھی بات مانتے ہیں، اور علماء ہم میں سے آپ بھی ہیں، تو اس لڑکے نے کہا تو اسی لیے ہم بول رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے نہیں بول لائیے رہے لڑکے سے میری بات کرائیے۔ تو السلام علیکم۔ جی بھائی جان، آپ کا نام؟ ہم تو وہی محمد انول انصاری بول رہے ہیں، تو یہ نمبر مانگ رہے تھے آپ کو، ہم کو پہچانے نا؟ اچھا محمد اینول بھائی کرو کرو سنیانوی ہاں، بریلوی؟ جھارکھنڈ کرو سے۔ ہاں
तो ये बोल रहे थे मौलाना है, इनके गांव में सब देवबंदी है, एक दो सुनी थी जो बहस होता है शायद, तो हमको बोले कि आप नंबर है ये मौलाना के दे दीजिए। हाँ। तो खैर, वही सब। हाँ, तो इनसे आप थोड़ा सा बात कर लीजिए और जो मोदी पर क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। पहले मैं आपके सलाम का जवाब देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपने ये कहा है कि जो कयाम नहीं करता मिलाद में? नहीं, हम नहीं बोले हैं, इसका बस्ती का कोई आदमी बोला है इसे, हम नहीं बोले हैं, इनका बस्ती का कोई आदमी बोले हैं कि आप लोग वही लोग से बहस हो रहा था, तो वो हमको फोन करके अभी बोले कि मौलाना का नूर हसन का आप नंबर दे दीजिए मौलाना को। तो क्या पता किसी ने बोला भी है कि नहीं बोला है। अगर मान लीजिए ये बोला भी है तो ये आलिम है, आलिम है। और अब मैंने इनसे बोला था कि उस लड़के से मेरी बात कराइए जिसने ये बात बोली है, तो आपको फोन थमा दिया। सुनिए ना, तो ये जो हो गया कोई मौजूद ही पूछना चाह रहा है, जिस मौजूद से अगर पूछेंगे तो आप बता दीजिए। हाँ इंशाल्लाह, मगर हमारा झगड़ा इनसे सलाम कयाम पर है ही नहीं। हम इनसे ये भी नहीं कहते कि तुम मिलाद करो या मज़ार पे जाओ या फातिया करो, हमारा तो इनसे ये इख्तिलाफ ही नहीं है। हाँ जी, असल मुद्दा है कि इनके बुजुर्गों ने हमारे नबी की शान में तौहीन की है और इनके 4 बुजुर्ग काफिर है। हमारा तो ये झगड़ा है इन लोगों से। अच्छा अच्छा। हाँ, सलाम सलाम दरूद ध्यान का तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना इन लोगों से हमारा। हाँ हाँ सही। हमने तो कभी इनसे कहा ही नहीं कि तुम मिलाद करो या मज़ार पे जाओ। तो इनके 4 अकाबिर काफिर है। हाँ, तो जो उनके कुफ्र में शक करे, जो उनके कुफ्र को जानते हुए उसे मुसलमान माने, वो भी काफिर है। हाँ जी, हमारी घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, हमने सीधा सीधा बता दिया। ठीक है, हमारा जो झगड़ा है वो आपसे अकाइद का है। जी जी। आपका जो अकीदा है आपके बुजुर्गों का वो कुफरिया है। हमको बुजुर्गों से लेना देना नहीं है, हमको उनसे बात नहीं करना है, हमको तो सिर्फ ये जो है 2-4 बातें थी उसी को बोलना था। एक तो फातिया के सिलसिले में वो बोले कि फातिया आप लोग नहीं करते, हम बोले फातिया नहीं करेंगे तो मुसलमाने नहीं रहेंगे। फातिया तो हम लोग हर दिन फातिया करना है, इशाले साहब फातिया का माने हुआ इशाले साहब अल्लाह और उसके रसूल के जो तरीका है उस तरीके पे हम इशाल साहब करेंगे, उसी का नाम है फातिया। हम बोले सामने रख करके करना कोई जरूरी तो नहीं है, सामने अगर रख के नहीं करते हैं तो भी इशाल साहब हो जाएगा। और जो चीज भी आप फातिया कर रहे हैं जिसको उसको बांट के गरीबों को बांट दीजिए, उसमें भी सवाब मिल जाएगा। यही बात है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है आपने। तो आप इशाले सवाब करते हैं, फातिया करते हैं आप अपने घर? एकदम, कैसे नहीं करेंगे, करना ही है, नहीं करेंगे तो इशाल साहब कैसे हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो गए गुजरे हैं उन लोगों का कैसे सवाब मिलेगा है? इसलिए उनके नाम पर तो करना ही पड़ता है। एक बात बताऊं हजरत, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है क्योंकि मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रहा हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सवाब होता ही नहीं देखा। जैसे हमारे यहाँ पे जुमरात को फातिया लगती है, सवाब होता है बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चले जाते हैं। दारुल उलूम में नहीं पढ़ा हूँ, एक टांडा बादली का एक मदरसा है जिसका नाम है, टांडा बादली में एक मदरसा है। यूपी रामपुर में, रामपुर की एक तहसील है टांडा बादली जी। तो वहाँ एक मदरसा है जिसमें मैंने पढ़ाई की है। वहाँ 2 मदरसों में मैंने पढ़ाई की है। एक का नाम है ये जामिया नईमिया, ये क्या नाम है इसका, रोज़तुल उलूम नईमिया करके ऐसे नाम है उसका, इमली वाला मदरसा बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, खुर्जियों वाला मदरसा, ठीक है। और रोज़तुल उलूम करके है उसका नाम, जामिया रोज़तुल उलूम, जामिया इल्मिया इस्लामिया रोज़तुल उलूम। और एक है जामिया इल्मिया इस्लामिया जो कि ईदगाह के पास है, जहाँ पे ईद का मेला भी लगता है। एक वहाँ सिद्दीकिया मदरसा है और एक जो है वो जामिया इल्मिया इस्लामिया है पैरामाउंट सेलर के पास। अब वो सेलर तो खत्म हो गया, जो राइस मिल था पैरामाउंट राइस मिल वो खत्म हो गया जी। हाँ, तो कौन सा फरागत हुई हजरत? जनाब मेरी कोई फरागत नहीं है, मैं एक बहुत छोटा सा कम इल्म आदमी हूँ।
ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، مگر الحمدللہ دنیا دیوبندیت کا بڑے سے بڑا مفتی بات نہیں کر سکتا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ جی جی تو آپ کہاں تک پڑھے ہیں، مفتی ہیں یا مولوی ہیں؟ ہم تو عالم فاضل کیے ہیں اور قرآن میں نے حافظ بھی ہیں۔ اچھا اچھا، حافظ بھی ہیں، چلیے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو جی آج صرف حضور کے محبت کے لیے کام کرتے ہیں، آج اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں آج۔ کولر کا ہمارا ہاں نہیں کچھ اب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں کیسے نہیں، ہم کو تو شوق لگتا ہے کہ کسی عالم سے ہم کو بات چیت ہو، اور بار بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو معلومات بڑھتے رہے، کہ آپ کے برکت سے اگر کچھ معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اب جی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں، اللہ کی عطا سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ حضور علم صلی اللہ غیب؟ علیہ وسلم کو ہاں علم غیب حاصل ہے یا نہیں اللہ کی عطا سے؟ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا کہ نہیں حضور کو؟ ہاں ہاں بالکل، کسی نہیں کیا؟ علم غیب اگر ان کو نہیں اللہ نے عطا کیا تو کیسے ساری چیزوں کو انہوں نے بتایا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت یعنی تک والی باتوں کو انہوں نے جو بتایا ہے، اللہ کی دیا ہوا عطا کیا ہی ہوا سیرا بتایا۔ ابھی جو ساری چیزیں آ رہی ہے سامنے میں، انہیں کے بتانے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 1500 برس پہلے انہوں نے جو بتایا تھا، آج ہمارے نظروں کے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صاحب اس کو معنی نہیں کر پائے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ نے اپنی نظروں سے دکھا دیا۔ گھر گھر ناچ گانوں کا ہوگا رواج عام، چھوٹے بڑے پسند کریں گے برے کلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس پہلے فرمایا تھا، جبکہ ہم لوگ جو ہے 50 سال پہلے اگر جاتے ہیں پیچھے، تو کچھ چیز کا انتظام نہیں تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کچھ نہیں تھا۔ اس وقت اگر کوئی کہتا نہیں کہ ایک بات دوسرے آدمی کے پاس پہنچے گا تو اس وقت اس کو پاگل بولتے۔ اب بتائیے 50 سال پہلے کی بات اگر بول لیتا اس وقت میں تو لوگ پاگل کہتا، اور جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال پہلے 1500 برس پہلے بتا دیے، اور آج وہ سارا ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ عین حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہی تو علم غیب ہے نا، حضرت کے مستقبل کی بات کو جان کے بتا دینا۔ بالکل صحیح بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا غیب عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، ہے نا، کہ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہوگا، کون مسلمان مرے گا، کون کافر مرے گا۔ بالکل صحیح بات۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے باپوں کے نام سے جانتا ہوں۔ بالکل صحیح بات۔ جو کافر ہے اس کافر کو اس کافر کے باپ کے نام سے جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ تو ایک منٹ، قیامت آ گئی آئے گی؟ جی قیامت آ گئی آئے گی؟ قیامت تو آئی رہی ہے۔ آ نہیں رہی ہے مطلب آئے گی یا آ گئی؟ قیامت ہو گئی، ہو چکی، یا قیامت آنے والی ہے؟ قیامت آنے والی ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جی کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بالکل صحیح بات۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حملہ کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اور پیچھے جو ہے افواہیں اڑاتے تھے، باتیں بناتے تھے جی ہاں، کہ معاذ اللہ حضور کو غیب کا علم کہاں معلوم، غیب کی خبر حضور کیا جانے، محمد کیا جانے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حفاظت فرمائے، ہے نا۔ جی ہاں۔ اچھا تو یہ بتائیے، جو یہ کہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ غیر اللہ کے لیے علم غیب کو میں نے رکھنا ہے، بالکل عقیدہ خراب ہے، عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھا نہیں تھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ مجھے غیر اللہ کی بات نہیں بول رہے ہیں۔ ہاں ہاں، غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا ایمان ہے یا کفر شرک ہے؟ یہ تو عین غلط ہے، عین غلط ہے۔ یہ علم غیب کو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اس کو دوسرے کو اوپر ثابت کرنا ہے، یہ تو غلط ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے نبیوں کو اللہ نے علم غیب بہت سارے نبیوں کو عطا فرمایا اور بتایا بھی، اور خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خصوصی طور پر ان کو عنایت فرمایا۔
اچھا تو حضور جو ہے وہ اللہ ہے کہ اس کے بندے ہیں, اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ حضور تو غیر اللہ ہی میں آئیں گے, اللہ کے بندے ہوئے نا. تو پھر جب غیر اللہ میں آئیں گے تو میں نے بولا کیا ہے؟ جی میں نے بولا کیا ہے؟ غیر اللہ ہی بولے. تو غیر اللہ ہی بولے تو آپ کو سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے نا حضرت. ہم تو بول رہے ہیں نا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں. اب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے تو سنیے, دوبارہ سنیے حضرت, میں نے آپ سے فرمایا تھا, میں نے آپ سے بولا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا, یعنی میرا عقیدہ ہے کہ حضور کو غیب کا علم حاصل ہے تو حضور غیر اللہ ہے, اللہ نہیں ہے, جی تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک کہا ہے. تو جس نے مشرک کہا یا کافر کہا وہ خود مسلمان ہے یا کافر مشرک ہے؟ کافر مشرک ہے. کافر مشرک ہے. جی سوچ سمجھ کے بولیے گا, آپ کے گھر کا حوالہ دوں گا آپ کے بزرگوں کا. ہاں ٹھیک ہے, ہم تو بول رہے ہیں. چلیے, تو مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یعنی علم غیب کسی کے لیے تسلیم کرنا, جی ٹھیک ہے, یہ شرک ہے, جی شرک سے خالی نہیں ہے. جی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا اچھا کہ کسی کے لیے عقیدہ رکھنا کہ ہم کسی کو پکارے اور وہ سن لے گا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں یا ہمارے دل کی آہٹ کو ہماری آواز کو وہ سمجھ لیتا ہے, سن لیتا ہے. جی ہم نے کسی کو پکارا اور اس کو علم ہو گیا, معلوم ہو گیا, یہ چھپا ہوا علم ہے, ہاں ٹھیک ہے. کسی کے لیے یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک سے خالی نہیں, یہ ہر حال میں ہر صورت میں شرک ہے. مگر میرا عقیدہ ہے کہ میں اگر یہاں درود شریف پڑھوں, حضور پر درود پاک پڑھوں, تو میرے آقا کو اس درود پڑھنے کا علم ہے. میرا یہ عقیدہ ہے, میں پڑھ یہاں رہا ہوں مگر مدینے سے دیکھ رہے ہیں, جی میرا یہ عقیدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے, سنیے, جو اس کے خلاف ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, ہم کو تو وہ سب بات نہیں کرنا ہے عوام کے سامنے. حضرت 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 بات ہو سکتی ہے, سنیے نا. حضرت ایک منٹ یہاں رک کے ذرا, مطلب تھوڑا سا, ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف اس طرح کا نہیں. جی ہاں, اس طرح کے لوگ آپ کے لوگ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. ہمارا یہ جھگڑا ہی نہیں کہ تم فاتحہ کیوں نہیں کرتے, تم فاتحہ کرو نہ کرو آپ کی مرضی. ہم تو کہتے ہیں مر گئے میں دودھ جس کی فاتحہ نہ کرو. صحیح بات, ٹھیک ہے حضرت. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے گھر میلاد مناؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ یعنی مزار پہ جاؤ. نہیں جانا چاہیے, نہیں جائے گا تو کیسے ان کو زیارت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. زیارت قبور کرنا بہت بڑا ثواب ہے, خاص طور سے بزرگوں کا ولیوں کا زیارت جانا چاہیے. آدمی کو زیارت کرے, بسے پائے جا کر کے ان کے نام سے, اور اپنے لیے بھی کرے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, آپ نے تو دل خوش کر دیا حضرت. ایک بات بتا دوں, جی آپ دیوبندیوں میں دھوکے میں ہو. وہ تو کہنے کا بھر دیوبندی ہے. ہاں ہم کو سنیے, ہماری بچیوں کی جو شادی ہوئی ہے نا, ہاں 3 بچی کو ہم دیے ہیں انہیں لوگوں میں, سنیے میں بھی ہے. اچھا, ان لڑکوں کا ایمان عقیدہ لوٹنے کے لیے یا سنی بننے کے لیے؟ ہم دیکھیے, علم جو ہے نا, علم کو بانٹنے والی چیز ہے. اس کو جتنا بانٹیے گا اتنا ہی زیادہ اپنا بھی فائدہ ہے اور غیر کو بھی فائدہ ہے. ایک منٹ, یہ معلوم کر سکتے ہیں, جیسا ہم کو اس لڑکا نے بتایا نا, دیوبند میں وہ پڑھا ہے مولانا صاحب آپ کے بارے میں, اور کم نہیں پڑھے ہیں, بولا کہ 8-10 سال یا 4-5 سال پڑھے ہیں بول کر کے. ہم کو جو بولے, سنیے نا, ہم کو جو بولے کہ دیوبند کے اندر فاتحہ نہیں ہوتا ہے, تو ہم بولتے ہیں نا کہ ہم مسجد کمال شاہ میں تھے اور ہماری وہاں جو ہے داخلہ ہوئی تھی 80 میں, اور 81, 81, 82, 83 میں ہم شراکت ہوئی میری, سمجھ گئے. اور وہاں جو ہے مسجد کمال صاحب مسجد کے اندر تھے, اور وہاں جمعرات کے روز پورے محلہ سے آتا تھا, میرے کوٹری میں پورا بھر جاتا تھا سلمی سب فاتحہ کے لیے. سب کو فاتحہ کر کے اس کے بعد جو ہے
बांटते थे, खाते थे, अपने भी और दूसरे को भी खिलाते थे। तो आपने कहा कि देवबंद में नहीं होता है फातिहा बोले, उसकी बात बोल रहे हैं। हेलो हेलो जनाब मैंने तो फातिहा की बात ही नहीं की है, मैंने तो सुनिए ना आज, हाँ सुनिए ना नूर अफजल भाई, जी 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 इन मौलाना को अकीदा ईमान के बारे में बताइए। हाँ इंशाल्लाह भी बताऊंगा। हाँ बताइए। पहली बात तो हमने कहा कि फातिहा दरूद नियाज मिलाद का आपसे हमारा कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, बिल्कुल सही बात। समझे जनाब। हाँ। अगर आप उस पर भी बात करना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपके घर की एक किताब है जिसका नाम है कमालाते अशरफिया, जी मौलवी अशरफ थानवी साहब की किताब है। जी उसमें उन्होंने कहा है, जी मतलब जहाँ पे ये रहते थे ना वहाँ की मस्जिद में लोग फातिहा दिलाने के लिए कोई ना कोई सामान लाते रहते थे। जी हाँ जी। उसमें जो वाक्या लिखा है वो जलेबी वाला वाक्या लिखा है कि अच्छा। लोग जो है अपना शिरीनी वगैरह सब लेके आए और बच्चे जो है बगैर फातिहा के उसको खा गए। तो हाँ बगैर फातिहा किए खा गए। तो वहाँ के लोग जो है बड़ा नाराज हुए, बड़ा गुस्से हुए और वहाँ पे एक हंगामा बर्पा हो गया। जी हाँ तो इनके एक बुजुर्ग को एक लड़के ने जाके चुपके से खबर दी कि हजरत वहाँ तो मामला बिगड़ गया है, वहाँ तो बड़ा मामला गंभीर हो गया है, लोग झगड़ने लगे। अच्छा। अब वो वहां से दौड़ के आया और हिकमत अमली से उसने उस झगड़े को मिटाया और लड़कों को डांटा और थप्पड़ भी मारा। हाँ कि क्या किसी की बगैर इजाजत के कोई चीज खाते हैं क्या? नहीं समझे। उसने एक हिकमत अपनाई और फिर उसको थप्पड़ भी मारा और फिर बाद में लोगों को वहां समझाया, मनाया और कहा कि अच्छा मतलब वो जो सामान लेके आए थे ना उसका फिर पैसा भी इकट्ठे करके दिया। ठीक है, बच्चों से पैसे लेके उनको पैसा वापस किया और कहा कि भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ पर फातिहा के लिए कुछ मत लाना। अच्छा। हाँ कौन रहते हैं यहाँ? वहाबी रहते हैं। यहाँ वहाबी रहते हैं। कौन कहता है? देवबंद का बुजुर्ग। जी हाँ अच्छा एक और हवाला सुने। कहता है कि फातिहा दरूद नियाज की चीज यानी हुजूर गौसे आजम की फातिहा ले लीजिए, हुजूर ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा ले लीजिए, किसी की भी जो है एहसान सवाब की कोई भी नियाज ले लीजिए, है ना। हाँ हाँ। उनके नाम से बिरयानी हो, लड्डू हो, जलेबी हो, मोतीचूर के लड्डू हो, बर्फी हो, रसमलाई हो, रसगुल्ला हो, कुछ भी हो। हाँ कहता है कि आवाम में लेने से मना मत करो। अच्छा। हाँ फितने का अंदेशा है, सबके सामने ले लो मगर उसको जो है एक गड्ढे में दबा दो। अच्छा। यानी खाओ मत, गड्ढे में दबा दो। तो गड्ढे में दबाने से मुराद क्या है? अगर तुम नहीं खा सकते, अगर तुम नहीं खा सकते तो किसी सुन्नी हनफी बरेलवी को दे दो, वो खा लेगा। गड्ढे में क्यों दबा रहे हो? हाँ हाँ। क्या मुराद है तुम्हारी गड्ढे में दबाने से? अच्छा जानवर को खिला दो, तुम नहीं खा रहे तो किसी जानवर को खिला दो। हाँ मगर मैं बताऊं हिकमत अमली, हाँ मैं यहाँ एक मिसाल दूंगा। जी। देखिए लोगों के घरों में खाना भी बच जाता है जो कि इंसानों के खाने का नहीं रहता जिस वक्त, तो उस वक्त जो है हमारे घर के जो जानवर होते हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे भैंस हो, कुछ भी हो, हाँ तो हम उसको डाल देते हैं। जी। समझे हजरत? हाँ 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 जब आदमियों के खाने का, इंसानों के खाने का नहीं रहता खाना, या खाने का रहता है बासी हो जाता है और फिर दोबारा सा और बन जाता है, तो हम उस खाने को जो है जानवर को दे देते हैं, रोटी को जानवर को डाल देते हैं, फेंकते नहीं, गड्ढे में नहीं दबाते। नहीं दबाते हैं। हाँ दबाना भी नहीं चाहिए। हाँ दबाना भी नहीं चाहिए, अल्लाह की नेमत है, वो बहुत कीमती नेमत है, उसको क्यों दबाएंगे गड्ढे में? हाँ इसलिए कि वो अल्लाह की नेमत है और ये नेमत हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। आसानी से, अरे आसानी से मिल गई यार हजरत। हमने देखिए एक रोटी आने के लिए ना कितनी जद्दोजहद करना पड़ता है, तो जो करता है वही समझता है ना। एक रोटी में बताया जाता है, साइंसदा बताता है ना, एक रोटी जो मेरे सामने आती है उसमें 50 लीटर पानी का खर्चा है एक रोटी में, तब जाकर को मेरे पास आती है एक रोटी बन करके। अब उसका पर बात करेंगे तो ये हमसे ज्यादा बेवकूफ और बदमाश कौन होगा? अल्लाह के मान भी अल्लाह
रसूल का जो है गुनहगार भी होगा। एक बात हम पूछना चाहते हैं हजरत, जरा सा आप उसको मेरी बात अधूरी रह जा रही है, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ तो कर लीजिए। अच्छा, मैं अपनी शॉर्टकट में बात को निपटाता हूँ। जी हाँ। उसने कहा कि गड्ढे में दबा दो, ठीक है। हाँ। बहरहाल हम खाने को किसी जानवर को डाल देते हैं, ठीक है। मगर अगर कभी ऐसा हो कि हम खाना बना रहे हैं और बड़ा अच्छा उम्दा लजीज खाना बन रहा है, ठीक है, और धोखे से उसमें केबड़े की जगह या किसी और चीज की जगह जहर पड़ गया, जी हाँ, और पता चला कि अरे यार ये वो फला चीज नहीं है, ये तो जहर था, मिसाल के, तो क्या अब वो खाना खाएगा कोई? नहीं, कैसे खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? उसमें जहर पड़ गया। जहर पड़ गया, हाँ, नुकसान देगा। अच्छा, क्या अब हम उसे जानवर को डाल सकते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हमारे घर का जानवर हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं ना। किस लिए? इससे नुकसान है। क्या नुकसान है? जान का खतरा है, बीमारी का। हाँ जी जी, जान का खतरा है, सही बोले आप। यानी मर जाएगा, जहर पड़ गया तो मर जाएगा। जी हाँ, ठीक है, इसलिए हम न उसे जानवर को डालेंगे न खुद खाएंगे, उसको दबाएंगे। हाँ, तो हुजूर गौसे आजम की नियाज की जो बिरयानी है, जो लड्डू है, जो मोतीचूर के लड्डू है, जो बर्फी है, जो जलेबी है, उसमें कौन सा जहर मिल गया जो इन देव के बंदरों ने उसको दबाने का हुक्म दिया? हाँ, हम लोग तो खाते हैं, कैसे उसको देखेंगे? खाते हैं। एक बात बताओ हजरत, देवबंदियों का धरा नहीं, चूचू का मुरब्बा है, और जो बनावट की चीज होती है ना, वो एक तार नहीं होती। हाँ, आपके यहाँ ऊंचा नीचा है, हमारे यहाँ ऊंचा नीचा नहीं है। हमारे यहाँ जो जायज है वो जायज है, और जो नाजायज है वो नाजायज है। जो हराम है वो हराम है, जो शिर्क है वो शिर्क है, जो कुफ्र है वो कुफ्र है। हमारे यहाँ एक ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हम ही अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी जिसको कहते हैं, हम ही हक पर है। बाकी आपके देवबंद वाले, अहले हदीस वाले, शिया, खादी, राफी, कादियानी, सब के सब 72 के 72 काफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सच्चे दिल से और डंके की चोट से बोल रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ। जिसकी पहचान आज मसले के आला हजरत से होती है, यही मोमिन है, यही मुसलमान है, क्योंकि यही है माना अलैहि वसहाबी के मिसाल। जी जी हाँ, ठीक है। बात तो ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं ना जी, मोदी को बोलिए। हाँ, इल्म गैब जो है ना, जिसके बाद बोले, हाँ है ना, हाँ, इल्म गैब जो है ना, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने के बाद ही मिल गई कि कब मिली है इल्म गैब उनको? जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा उनको अता किया, अता करते चले गए, है ना। जो मालूम था वो तो मालूम ही था, और जो नहीं मालूम था वो अता किया। हाँ, ठीक है, मेरे शुरू में नहीं था, कहिए। अरे यार, कौन कहता है? मेरे नबी तो ये फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान में मैं उस वक्त नबी हूँ। तो ये इल्म है कि नहीं है? नबी तो आपको अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आने से कई हजार बरस पहले ही उनको अल्लाह ने नबी बना दिया था। एक मिनट, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हुजूर अपनी वालदा के शिकम में थे, शिकम मुबारक में थे, जी हाँ, तो हमारी अम्मा हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जी हाँ, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था जी, मेरे नबी के नूर की रोशनी से। सही बात। तो जो नबी नहीं है, नबी की वालदा है, माँ है, जी हाँ, जब वो देख ले तो फिर मेरे नबी के इल्म का क्या हाल होगा, मेरे नबी की निगाह का क्या आलम होगा, जरा बताएं। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप इनसी टैप लेके क्यों फिरते हो? बस इतनी सी हम पूछना चाहते हैं ना कि आपको इल्म गैब जो है मैंने पैदाइशी है। फिर वही बात मैंने कहा, जो अल्लाह देखिए जिस तरह उसको हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, तो आप मौलवी हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा क्या? मुझे ज्यादा मालूम होगा? थोड़ा सा इसका भी जवाब दे दें जरा। जी, आप मौलवी हैं? रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप मौलवी साहब हैं? मौलवी साहब मौलवी साहब नहीं है हम। अरे आप तो कह रहे हैं ना आलिम है आप। आलिम साजिम दोनों है, हाफिज भी है। हाँ। अच्छा, कै क्लास पढ़ी है आपने जमाते? 9 क्लास पढ़ी है कि 6-7 क्लास पढ़ी है? 5 क्लास पढ़ी है? पंजुम तक या छठम तक या कहाँ तक?
शुरू से लेकर आखिर तक हम पढ़े हैं दौरे तक। मौलवी तो मौलवी हुए ना? जो समझिए। अच्छा मैंने सुना, अच्छा झारखंड से है ना आप? हाँ आप झारखंड से है ना? जी हाँ, झारखंड से हैं। कौन सी जगह से, कौन सी जगह से? यही कुरू थाना पड़ता है, जिला लोहरदगा पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अच्छा अच्छा, वो आप ही हैं? अच्छा अच्छा, आप ही का नाम लिया है। मैंने सुना है आप उस जगह के बहुत बड़े हिमार हैं। हाँ मैंने सुना आप उस जगह के बहुत बड़े हिमार हैं। क्या बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि आप उस जगह के बहुत बड़े हिमार हैं, दुनियाई देवबंदियत के, अपनी जमात के। हाँ हाँ मैंने सुना है देवबंदी जमात के आप बहुत बड़े हिमार हैं। ठीक बोल रहे हैं, सही बात है। सही बात है। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल सही बात। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ चलिए, सही बताया था किसी ने। हाँ सही बताया था। हाँ तो वही पूछना चाहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता हुई है इल्म गैब, वो कब हुई है? पैदाइशी हुई है कि बाद में हुई है कि ये आपको नबूवत मिलने के बाद हुई है आता कि पहले हुई है? ये हम हाँ, अगर पहले हुई है तो भी एतराज हो रहा है, और बाद में हुई है तो भी एतराज हो रहा है, बाद में भी होने के बाद भी एतराज हो रहा है। इसलिए कि आपके सामने जो है जहर खाया है एक शहाबी के बारे में आपको पता होगा कि आपने जो है गोश्त का लाया गया उनके पास, और शहाबी जो है भूख के मारे यही हो रहे थे, और आप भी नश फरमाया और उसको भी खिलाए, है ना? और वही जहर का असर अभी भी आपके बदन में मौजूद था, आखिरी उम्र में भी वो जहर का असर किया है ना? इसी तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर थे, उस वक्त में बिच्छू मारा है जान को, उस वक्त का भी आपको इल्म रहा होगा, तो आप फिर वहां पर कैसे ले गए? ये सारी चीजें बातें आती है गैब के सिलसिले में, लेकिन इधर हमको जाना नहीं है। मुख्तसर तौर पर बात इतनी है ना कि जो हमारे खास तौर पर जो अमल करने का चीज है उस पर नजर डालना है, गहराई पर नहीं जाना है। हमको और आपको इल्म वाले इसको आपस में बहस कर सकते हैं, है ना? लेकिन आवाम जो बिल्कुल जो है वो पूरा है, उसके पास तो कोई इल्म नहीं है, इसलिए उनको जो है मोटी मोटी बातों पर अमल करवाना है। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इस तरीके सुन्नतों पर अमल कराना है। ये नहीं कि उनको जो है अकीदों पर और इन चीजों पर फंसा करके उनको नमाजों से भी दूर रखे, सुन्नतों से भी दूर रखे, फर्जों से भी दूर रखे, ना रोजा रखता है, न नमाज पढ़ता है, जुआ और ताश और तम और जो है गांजा और शराब में फसल रहता है। ये जो है ना, इन चीजों से लोगों को मना करना चाहिए, ना कि इन चीजों में फंसाना चाहिए, है ना? चलिए माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस तरह मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जरूरत पेश आती रही, जी उस तरह मेरे रब ने मेरे आका को गैब का इल्म अता किया। ठीक है, मेरा ये अकीदा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार में सारा इल्म गैब हुजूर को अता कर दिया। ठीक है, ये मेरे आका, सुनिए है। अरे सुनिए ना हजरत। हाँ ठीक है, बोलिए। अब आप अपना ये अकीदा बताइए कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब का इल्म मानते हैं या नहीं मानते हैं, और मानते हैं तो ऐतराज क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए एक मिनट, मानते हैं तो ऐतराज क्यों करते हैं? ठीक है, और नहीं मानते हैं तो खुल के ऐतराज कीजिए और अपना जवाब भी बताइए कि मैं हुजूर के लिए गैब का इल्म मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपके घर से जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए हम इल्म गैब मानते हैं, लेकिन जिस वक्त जैसी, सुनिए ना, फिर ऐतराज क्यों? हाँ सुन लीजिए पहले। इल्म गैब की जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ी, उस वक्त में अल्लाह ने उनको इल्म गैब दिया और इल्म अता किया, और हो गया, उनको मालूम हो गया और बता भी दिए। फिर उसके बाद वो इल्म गैब आप अल्लाह ने अपने पास रख लिया, तो जिस वक्त नहीं था उस वक्त में यानी वापस ले लिया। हाँ, हमेशा आपके पास इल्म गैब नहीं रहा। इसी वजह से सहाबा जो है बहुत जंग में आप फतह भी हुई और बहुत जंग में शिकस्त भी हुई, बहुत जंग में फतह भी हुई, बहुत जंग में शिकस्त भी हुई। आप जंग उहद में जख्मी भी हुए, आपके दंदान मुबारक शहीद भी हुआ। ये सारी चीजें आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा हजरत, जरा गौर कीजिए ना। अगर आपको इल्म गैब होता तो आप सहाबा को जाकर कत्ल नहीं करवाते। इसी तरीके से 70 सहाबा जो है शहीद में, जो कारी और हफाज
कुरान थे, उस वक्त में जो है 70 साहबा को एक जो है अहले किताब के साथ भेज दिया गया और जाकर के वो जो है सबको कत्ल कर दिया गया था। अगर इल्म गैब आपके पास मौजूद होता तो आप क्यों शहादत करने के लिए भेजते होते अपने साहबा को? इसी तरीके से जंगों के अंदर बहुत सारे साहबा शहीद हुए, आप भी शहीद हुए, आपको भी जख्मी हुआ है ना। ये सारी बातें बात बता रही है। आपने एक बात में 36 बातें कह दी। हाँ सत्य हजरत, एक बात में 36 बातें कह दी। अब मैं किस किस का तुम्हें जवाब दूं और किस किस का ना दूं। अब चलिए यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। हाँ, आपने कहा कि हुजूर को इल्म गैब दिया जाता था, फिर वापस ले लिया जाता था। हाँ, जिस वक्त जिसकी जरूरत पड़ती थी। खामोश रहिए। हाँ, वो कुरान पाक की आयत पेश कर दीजिए कि हुजूर को इल्म गैब अता किया जाता था, फिर वापस ले लिया जाता था। वो कोई आयत पेश करे या कोई हदीस पेश करे। अब उस पर हम क्या बात कर सकते हैं? हम तो इल्म गैब पर बात नहीं करें। एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं? आपने जो बोला है उसको दलील के साथ बोला होगा ना आपने? जी हाँ, तो जो आपने कहा कि हुजूर को गैब का इल्म दिया जाता था मगर वापस ले लिया जाता था, तो वापस लेने वाला जो सबूत है वो पेश करिए आप। वापस के क्या मतलब हुआ? इल्म गैब की जहाँ पर जरूरत पड़ी वहाँ पर इल्म गैब दिया गया। नहीं, तो मालूम होना था, मालूम कर उसको बता दिया गया। क्या नाम बताया था हजरत आपने अपना? मौलाना हबीबुल्लाह कासमी। मौलाना हबीबुल्लाह कासमी। कासमी है। अच्छा अच्छा, मौलाना हबीबुल्लाह कासमी साहब। चलिए, वाकई मुझे जमात देवबंद के बहुत बड़े हिमार लग रहे हैं और वाकई आपने कहा हाँ मैं बहुत बड़ा हिमार हूँ। कोई बात नहीं है, आप जितने भी बड़े हिमार हो, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई थानवी जी ने भी इस बात को कहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं उस बात का जिक्र यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तो आपने जो इस बात को कहा ना हजरत जी कि हुजूर को गैब का इल्म दिया गया मगर देने के बाद वापस ले लिया गया, ये बोला ना आपने। तो ले लिया गया का सबूत मुझे चाहिए हजरत, वो जहां से भी आप पेश कर दें। इल्म आपका जो कहना है कौनो मता का इल्म जो है हुजूर को दे दिया गया, आपका ये कहना है ना? अरे मेरा तो सब कुछ कहना है, मगर मेरा कहना ये है अब कि ले लिया गया, इसका सबूत आप पेश कर दें हजरत। कि अल्लाह ताला ने गैब का इल्म दिया तो था मगर वापस ले लिया, तो जो वापस लिया ना उसका जो है मुझे सबूत चाहिए, उसकी दलील चाहिए आपकी तरफ से। आप मेरी बातों को नहीं समझे हजरत, तो आप दोबारा से समझा दीजिए। हमारा ये कहना है जैसे किसी कुफार ने सवाल किया आपसे क्या फला चीज कैसे होगा, तो उस वक्त में इल्म गैब की जरूरत पड़ी तो आपको अल्लाह ने अता फरमा दिया और उसके जरिए आपने बता दिया। फिर आप जरूरत तो पड़ेगी, उस वक्त अल्लाह इल्म देते थे, हजरत जिब्रील इस्लाम आके खबर देते थे और उसके देखते आपको सारी बातों का पता चलता था। और अगर कहिएगा आपको जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त से कि आखिर तक आप इल्म गैब उनको मौजूद था, तो आपको फिर कुरान नाज़िल होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हजरत जिब्रील की क्या जरूरत सामने आने क्या और एक उतारने का? अल्लाह के इंतजार क्यों करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या जिब्रील आएंगे और हुक्म लेकर के आते तब आप खबर देते? हजरत जिब्रील इस्लाम उसके बाद जो लोगों को आप बताते सहाबा किराम को, तो फिर उस पर अमल होता। तो इसलिए जो है जिब्रील इस्लाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना है, कहाँ नहीं है कि नहीं? आपने ये कहा था कि हुजूर को गैब का इल्म दिया गया फिर वापस ले लिया जाता था, तो ये जो वापस ले लिया जाता था इसकी दलील मांगी है मैंने हजरत। आपको तो समझ भी नहीं आ रहा है। आप अरे हजरत आप ही ने तो बोला है जरूरत पड़ती थी उसकी, उस वक्त आपको दिया जाता था जिसकी वापस ले लिया जाता था। एक मिनट, वापस ले लिया भी जाता था क्या? लेने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, क्या लेना है? जब खत्म हो गया आप वापस ले लिया जाता था, तो अगर वापस ले लिया जाता था तो उसकी कहीं दलील होगी, तभी तो आपने बोला है। वो तो बोले थे, हम गलती से बोल दिए। चलिए ना भाई, तो माफी मांगिए, तौबा कीजिए। हाँ तौबा करते हैं, चलिए ना, गलती से हम बोल दिए, माफी मांगिए। माफी तो माफी तो तेरे महबूब की शान में मुझसे गलत अल्फाज इस्तेमाल हो गया। हाँ हो गया, इस्तेमाल गलत हमसे हो गया।
बोलने में चूक हो गई। माफी मांगिए जैसे मैं कह रहा हूँ। तो माफी तो मांग लिए, तो अब क्या करना चाहते हैं बोलिए ना। मुझसे थोड़ी अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मुझे वही से मांग रहे हैं। चलिए ना, हम अल्लाह ही से मांग रहे हैं, अल्लाह ही से माफी मांग रहे हैं। जी मांगिए। अब आपसे क्या मांगेंगे हम? मुझे थोड़ी अल्लाह से मांगिए ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं अल्लाह से। जी हमसे बात कीजिए ना, पूरा इंडिया से होगा आपके पास। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ अब सुनता होगा। तो अब दूसरी बात आपने ये कही थी ये बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ सहाबा थे 70 सहाबा, जी वो जंग में गए थे, हुजूर ने भेजा था। अगर हाँ। हुजूर को इल्म गैब होता कि ये शहीद हो जाएंगे तो हुजूर नहीं भेजते। नहीं भेजते। हाँ तो इसका इल्म सिर्फ हुजूर को ही नहीं था या अल्लाह को भी नहीं था? आपसे जवाब अल्लाह को तो इल्म अल्लाह को था, अल्लाह को अल्लाह था। को जानते हैं। अच्छा ना? आलिमुल गैब है ना। हाँ चलिए जब अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, एक मिनट जब हाँ। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है तो फिर हुजूर के उन 70 सहाबा को, उन हुजूर के 70 उम्मतियों को क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने मरवा दिया? जरा सा जवाब दें। यहाँ पर तो अल्लाह ताला को दिखलाना मकसद है। अल्लाह को जो मर्जी करना है वो तो अपना अल्लाह ताला के आवाम को दिखाना मर्जी है कि ये देख लो मेरे बंदे के अंदर इल्म गैब नहीं है, इसको बताना। माशाअल्लाह। अच्छा ये दिखलाना था कि देखो भाई मेरे बंदे को, मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है, ये दिखलाना मंजूर था। हाँ चलिए दलील पेश कीजिए। वही तो बात अलग है कि दलील पेश कीजिए दलील पेश। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील पेश कीजिए। आपने पढ़ा कहाँ? दलील पेश कीजिए। किस आलिम ने जो है लिखा है, किस आलिम की किताब से आपने ये पढ़ा है? किस मुहद्दिसीन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हुजूर को जो है इल्म गैब नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना था? चलिए कोई एक कॉल पेश कीजिए अपना। अब क्या पेश करें आपको? जब देखिए अगर जो बात करेंगे उसकी दलील पेश करेंगे कि नहीं आप? दलील पेश क्या करना है? वो तो देखिए रहा है क्या। अरे हुए सारे साहब हजरत ऐसे थोड़ी बात होती है। देखिए वहाँ से जो मैं कहूँगा, एक मिनट हजरत देखिए, कागज की चुनाव है ना, ज्यादा देर पानी में नहीं टिकती है। कागज चुनाव को गल ही जाना होता है और डूब जाना होता है। तो आपकी जो नाव है ना वो कागज की नाव है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन के सामने। हाँ सही बात। आप कितने भी कलर बदल के आएंगे तो नूर हसन के सामने आपका कोई भी कलर चल ही नहीं सकता। नहीं चलेगा। कलर वही चलेगा, गुम्बद खजरा वाला कलर वही चलेगा। हाँ हाँ कलर वही चलेगा। सही चलेगा तो वही। हाँ अच्छा मेरे साथ में पढ़िए, या रसूलुल्लाह अल मदद। वाली रंग ना उसी का चलेगा, उनकी बात सही है। मेरे साथ में पढ़िए, या रसूलुल्लाह अल मदद। पढ़िए, या रसूलुल्लाह अल मदद। ये बोल रहा है। पढ़िए ना, या रसूलुल्लाह अल मदद। हाँ या रसूलुल्लाह अल मदद। या अल्लाह तेरे हबीब की शान में मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ फरमा। हाँ या अल्लाह तेरे हबीब के शान में जो गलती हुई है उसको माफ फरमा, और मुझे अपने हबीब की मोहब्बत में गिरफ्तार फरमा। और अपने हबीब की मोहब्बत में गिरफ्तार फरमा। चाहिए मेरे कुफ्रों को और शिर्क को और जितने भी मेरे गुनाह हैं जी उसको माफ फरमा के मुझे ईमान की दौलत से मालामाल फरमा। आमीन आमीन। मैंने जो कहा उनको जुमलों को दोहरा लीजिए। हाँ सच्चे दिल से दुआ मांगिए। या अल्लाह तेरे हबीब के शान में जो भी गुस्ताखियां की हैं, मेरे हबीब की शान में जो भी गुस्ताखियां की है, जो भी मुझसे गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मुझसे गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उनसे मैं तौबा करता हूँ। उससे मैं तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ। मैं तेरे हबीब से मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरे हबीब से मोहब्बत करना चाहता हूँ। मुझे हुजूर की मोहब्बत से मालामाल फरमा। हुजूर की मोहब्बत से मालामाल फरमा। हुजूर की मोहब्बत मेरे सीने में कूट कूट के भर दे मेरे मौला। हुजूर की मोहब्बत मेरे सीने में कूट कूट के भर दे। हुजूर के दुश्मनों से मेरी हिफाजत फरमा। और हुजूर की दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा। हुजूर की शान में तौहीन करने वालों से दूर रख।
हुजूर की शान में तौहीन करने वालों से दूर रख। आमीन सुना आमीन या रब्बल आलमीन। अब सुनिए, मैं अपने नबी का कमाल बताता हूँ आपको। जी हाँ। आपने जो ये बात कही है ना, बिल्कुल सरासर गलत कही है। अच्छा जी, अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, और मोमिन के लिए शहादत से बढ़ के कोई उसका मकाम नहीं। जी समझे हजरत? हाँ अल्लाह तबारक व तआला जानता था, जी हुजूर भी जानते हैं मामला क्या पेश आने वाला है। हाँ ठीक है, मगर जी। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कौन मेट देगा। अच्छा ठीक। और अल्लाह की रजा में मेरे नबी राजी है, अच्छा ठीक। और मेरे नबी की रजा मेरा खुदा चाहता है। ठीक। जो आलम चाहते हैं रजाए खुदा, खुदा चाहता है रजाए मोहब्बत। मोहम्मद, हाँ सही बात। तो जो मेरे रब की मर्जी है, क्या मेरे हुजूर मेरे नबी उस रब की मर्जी से खिलाफ चलेंगे? नहीं। फिर आपने कैसे इनकार किया कि हुजूर को इल्म नहीं था? इल्म गैब का तो बार बार कुरान में जिक्र कर रहा है, एक जगह नहीं, कई जगह, हजारों जगह बहुत सारे सबूत भी है और बहुत सारी दलीलें भी है। क्या? और बहुत सारी इल्म गैब की खबरें भी आपने दी है, वो भी सही है ना। कुरान पुकार रहा है बार बार, उसके पर भी ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने इसका भी जवाब दीजिए कि जब आपको इल्म गैब था तो वह हजरत जिब्राइल की क्या जरूरत हुई बीच में, है ना। एक मिनट, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सुनिए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कासिद के ताल्लुक से है, एक गुलामी की हैसियत से है। मेरे नबी के दर के गुलाम हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हाँ सही बात। मेरे नबी के खादिम हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही बात। समझे जनाब? हाँ आप बैठे हुए हो मदरसे में, दरसगाह में या घर में, आपने कहा बेटा पानी लेके आओ, क्या तुम्हारी कुव्वत नहीं थी पानी लाने की? बिल्कुल थी। और जब वो बच्चा मना कर देगा तो क्या कहलाएगा? बेअदब क्या बाअदब? बेअदब। और बच्चे ने पानी ला दिया तो क्या कहलाएगा? बाअदब। माशाअल्लाह। तो जनाब ये एक ताज़ीम है, एक अदब है। हाँ, एक सिस्टम है अल्लाह तबारक व तआला का, एक कानून है अल्लाह तबारक व तआला का। ये शान अजमत दिखाई गई है मेरे नबी की। वरना बहुत सारी चीजें मेरे रब ने, अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अता की है। कौन कहता है कि बगैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अता नहीं की? बहुत सारी चीजें हैं, एक बात नहीं है, पूरे कुरान मौजूद है। इसके अलावा जो है आपको बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तहावी शरीफ, इसी तरह से बहुत सारी हदीसें हैं जिसको अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातों को अपनी तरफ से भी बयान फरमाया। वो अल्लाह ही की बातें हैं, लेकिन सब जगह में जिब्राइल है ना। कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, जिब्राइल की भी आई, लेकिन जो कुदसी के अलावा हदीसें हैं वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला हमको, है कि नहीं। जो मेरा सवाल था वो जवाब ही नहीं दिया आपने, अपनी तरफ से कुछ और कह दिया। आप मुझे ये बताइए पहले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गैब का इल्म हासिल है, जो गैब की बातें मालूम है, ये सारी बातें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से मालूम हुई या अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट ही हुजूर को भी अता किया? बहुत सारी बातें ऐसी है जिसको डायरेक्ट मिला आपको और बहुत सारे इल्म के जरिए मिला, है ना। अच्छा सुनिए, अब एक और चीज सुनाता हूँ। देखिए, आपके देवबंदी वहाबी कहते हैं माज़अल्लाह के हुजूर को अगर मालूम होता तो मालूम क्यों करते, या हुजूर को अगर मालूम होता तो किसी ने बताया तो उसको बता देते। ठीक है, किसी के पूछने से, समझे, किसी ने कुछ पूछा हुजूर ने नहीं बताया तो इसकी ये दलील नहीं है कि हुजूर को वो चीज मालूम नहीं है। ठीक है। हाँ, और मेरे नबी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने पूछा तो लोग दलील बनाते हैं कि देखो भैया हुजूर को मालूम होता तो बता देते, या मेरे नबी ने कुछ पूछ लिया, ठीक है, तो कहते देखो भाई हुजूर ने पूछा है, अगर हुजूर को मालूम होता तो पूछते क्यों। ठीक है, इसको दलील बनाते हैं लोग। उसके जवाब दिए ना हजरत। जवाब देता हूँ इंशाल्लाह, टेंशन क्यों लेते हैं। के अंदर जो आपसे सवाल हुआ, आपसे जो सवाल हुआ, अल्लाह ने
हजरत जिब्राइल इस्लाम को भेजा गया हेरा के अंदर, पहले मेरी बात तो पूरी करने दो यार। उसमें जो है ये इकरा, अरे यार तो आपने क्या बोला? क्या बोला? पाक ने क्या कहा? क्या कहा? माँ अना बिकारीन, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। आपने कैसे समझा इसको मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? हुजूर ने ये बोला, आपको मालूम नहीं है? अब मुझे मालूम है यार, मैं हुजूर का उम्मती हूँ। क्या आपको तो अल्लाह ने उम्मी? अरे सुनिए सुनिए, उम्मी से मतलब क्या है? उम्मी के माने अनपढ़, अनपढ़, पढ़ा लिखा हुआ। अच्छा आज भी अनपढ़ है? हाँ, आज भी अनपढ़ है हुजूर? तो अनपढ़ के मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपको मालूम नहीं है, सो बात तो नहीं हम कर रहे हैं। उम्मी का माना बताइए। ठीक ठीक, ये अनपढ़ का माना मत कीजिए मेरे सामने। बिना पढ़ा लिखा आदमी को उम्मी कहा जाता है। तो हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे? हाँ, हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे उनको किसी के जरिए नहीं मिला पढ़ाई लिखाई, उनको अल्लाह ने खुद पढ़ाया लिखाया, उनको खुद अल्लाह ने इल्म दिया। तो आप तो उम्मी कह रहे हैं, अनपढ़ कह रहे हैं। अनपढ़ का सीधा साधा मामला हुआ, माशाअल्लाह आपने मेरे नबी को जाहिल बता दिया। समझे जनाब? और तुमने जो पढ़ा ना इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी का जो नाम लिया आपने, इकरा पढ़िए, मेरे नबी ने ये नहीं कहा था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। और ये झूठ बोलना बंद करो जनाब। सुनिए इसका ये मतलब है कि मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे पढ़ने वाला नहीं हूँ। जब तक के इकरा इकरा कहते रहे नहीं पढ़ा। जिब्राइल सलाम फरमाते थे कि पढ़िए, मेरे नबी फरमाते थे कि मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, एक मिनट रुकिए ना, खामोश रहिए। जब तक इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसको आप अपना रब मानते हैं, जिसकी आप हम्दो सना बयान करते हैं, पढ़िए उस रब के नाम से। जब तक मेरे रब का नाम नहीं आया, ये कायदा कानून है। हुजूर ने पढ़ा नहीं। अच्छा सुनिए, आपको पता है? सुनिए ना, पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए जनाब। हुजूर ने इसलिए नहीं पढ़ा कि उस वक्त से जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ यही कहते थे कि पढ़िए। हाँ पढ़िए, ये नहीं कहते थे कि अपने रब के नाम से पढ़िए। अच्छा, बहुत आदमी सुनता होगा, समझे जनाब? हाँ। तो जब हुजूर ने सुन लिया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमले इस्तेमाल किए, जब पढ़ा उन्होंने, तो मेरे नबी ने भी पढ़ा। अगर पढ़े हुए नहीं थे तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये क्यों कह रहे थे पढ़िए? पढ़िए, हाँ ठीक। क्यों? एक मिनट, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, हुजूर ने इसलिए मना किया, सब मिल जाएगा जवाब आपको। हाँ, कि हुजूर जो है अल्लाह की मोहब्बत में तो गिरफ्तार थे ही, आपको मालूम है ना? हाँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भी, ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में ज्यादा शर्त पाया तो आपको अपनी तरफ राह दी। मगर देवबंदियों ने तर्जुमा किया माज़अल्लाह कि महबूब, हमने आपको राह से हटा हुआ पाया तो राह दी माज़अल्लाह। अगर तुम हटे हुए थे तो फिर इतने सहाबा इकराम को राह रास्त पर कैसे लाए? नहीं, वैसा तर्जुमा तो कहीं पर नहीं पढ़े हम। अरे है यार, थानवी जी का उठाओ ना तर्जुमा, थानवी जी का तर्जुमा उठाओ, चूनागढ़ी का तर्जुमा उठाओ, जमुनागढ़ी का उठाओ, ये चूने पूने जितने भी है तुम्हारे सबका उठाओ, कहीं पर नहीं लिखे। अबुल हसन अली नदवी का उठाओ। हाँ, इनके सबका उठाओ, उसमें क्या लिखा है आप देखो, आपको पता चल जाएगा। बहरहाल जब मेरे रब का नाम आया, मेरे नबी ने पढ़ना शुरू किया। अगर पढ़े नहीं थे तो फिर पढ़ा क्यों? आपका सवाल है मेरा। मेरा सवाल आपसे है, अगर हुजूर पढ़े हुए नहीं थे तो फिर पढ़ा क्यों बाद में? हाँ, तो वही बात हम कह रहे हैं कि जब आपने सुनिए, जवाब तो मिल रहा है आपको, सुनिएगा तब तो। जब पढ़ा हुआ नहीं थे, पढ़े हुए नहीं थे, तो आपने कहा कि माना बेचारी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये नहीं कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। कौन कहता है इसका ये मतलब है? हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं, यानी अपने बगैर रब की इजाजत के, अपने रब के बगैर नाम के मैं पढ़ने वाला नहीं। इसका ये मतलब है यार, कहाँ से कहाँ घुमा के लेके जाते हो? मेरे नबी से मोहब्बत करते हो कि उनसे नफरत करते हो? सुनिए ना हजरत,
इकरा बिस्मिल रब्बिकल लज़ी पढ़िए, आपको कहा इकरा बिस्मिल, है ना? अच्छा हाँ। ठीक है, तो कहना है कि इकरा पढ़िए कहा है ना? 3 मरतबा जब आपने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और तीनों मरतबा आपने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अरे यार, हुजूर ने नहीं कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, हुजूर ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं। अच्छा चलिए, पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक। हाँ, उसके बाद जो है आप एक मिनट, इसकी मैं मिसाल पहले ना, इसके बाद चुपिए ना मौलाना साहब। हाँ बोलिए। मैं जानता हूँ आप जमात देवबंद के बहुत बड़े हिमार हैं, आपने तो बता ही दिया है, मगर आप मेरी भी हाँ, बात सुन लें यार। हाँ बोलिए ना तो भाई। मैं जैसे पेशे से कोई भी काम करता हूँ, जी जी। और कोई बंदा मुझसे कह रहा है यार ये फला काम कर दो, हाँ मैं कहूँगा अरे यार मुझसे नहीं हो रहा है, हाँ ठीक। मुझसे नहीं होगा, हाँ समझे? हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस काम को जानता नहीं, हाँ बस मेरी तबीयत नहीं चाह रही है, जी। मेरा दिल नहीं है, इसलिए मना कर दिया मैंने। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, हम 2 बंदे हैं, कोई हम कहीं जा रहे हैं, जो मेरे साथ का बंदा है वो कह रहा है यार नूर हसन भाई गाड़ी चलाइए, आप चलाओ गाड़ी, मैं कहूँगा नहीं यार मुझसे नहीं चलेगी गाड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे गाड़ी चलाने नहीं आती, हाँ सही बात। हाँ, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा, मना कर दिया, नहीं मुझसे नहीं चलेगी गाड़ी, मेरा दिल नहीं है गाड़ी चलाने का। जी। जनाब कहाँ से कहाँ तुम बात को लेके जाते हो, मेरे नबी की तौहीन कर रहे हो, ये सब बातें तौहीन करती है मेरे नबी की, मेरे नबी के कमाल को घटा के ये सारी बातें जितनी भी देवबंद के पाक वसल्लम की जो तौहीन करेगा वो खारिज हो जाएगा इस्लाम से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुमसे कि तौबा कर लो सच्चे दिल से। सुनिए, तुमने उस टाइम से कितनी कितनी बातें कह दी ऐसी गलत, जो तुम खुद अपने आप में गलत मान चुके हो। अच्छा सुनिए, तो पहले बोलिए। फिर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जब कहा कि माना बेतारीन, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आखिरी में क्या किया, अपने सीने से लगाए हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दबोचा जोर से। उन्होंने कहा इतने जोर से दबोचा कि मुझे जो है जान निकलने के करीब होने लगा मुझे। निकलने का कब अल्फाज है उसमें? इसमें रद्द जान निकलने का अल्फाज कब है उसमें? पड़ा है कि नहीं? कह रहा हूँ जान निकलने का अल्फाज कब है उसमें? देख लीजिए, आपको भेजने का है कि नहीं? हजरत जिब्रील इस्लाम ने आपको दबाया कि नहीं दबाया? हाँ दबाया, तो उसमें जान निकलने का अल्फाज है? अच्छा नहीं है मान लीजिए, लेकिन दबाया तो उसके बाद ना तो दबाया, मगर जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मुझे जान भैया वो नहीं है, हम मानते हैं, चलिए नहीं है जान निकलने की अपनी तरफ से, लेकिन आपने आपने दबाया कि मुझे इस्तेमाल क्यों किया? ये जान निकलने को थी। हाँ नहीं, पसीना आने लगा, चलिए ना वही बात, आपने इस जुमले को अदा क्यों किया मुझे ये बताइए, क्यों यार, क्यों गलती पे गलती किए चले जा रहे हो आप? वाकई आप क्या बोलूं यार, जो बोलना है बोलिए, हम तो रोक नहीं है हजरत, अब जो चाहे बोल सकते हैं। आप उम्र में बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं मुझे, आप कम से कम 1000 बार बोलेंगे, लेकिन मैं उस बात को नहीं कहूँगा जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। मैं कहाँ कुछ, मैंने कभी आप अभी तक आपको मैंने कुछ कहा? आप ये बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटरसाइकिल चलाने जानते थे? फिर वही बात, अगर आज कोई चला रहा है तो क्या बिदअत है, नाजायज है, हराम है, क्या है? चलिए आप इसका जवाब दे दीजिए। है ना, बहुत सारी बातें अभी ऐसा है ना, उसका इल्म हुजूर को नहीं था, अब नहीं है, अल्लाह ने नहीं। एक मिनट जानते थे? अरे एक मिनट, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जिसकी इल्म की जरूरत आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, उसको नहीं दिया अल्लाह। एक मिनट तो थी, उसको दिया अल्लाह। हाँ चुप तो जाओ। हाँ मोटरसाइकिल की जरूरत उसको पड़ती है जी कि जिसको जाने में देर लगती हो। पहले लोग पैदल सफर किया करते थे। हाँ हाँ सही बात। साइकिल बनी, लोगों ने साइकिल खरीदी, साइकिल इस्तेमाल की जी। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल बनी, रूना, पुक और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां बनी, 4 व्हीलर बनी, हवाई जहाज बने, ट्रेनें बनी जी। मेरे नबी के तो। अच्छा ये बताइए, आप लेटरिन बाथरूम में जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं? हाँ? आप लेटरिन बाथरूम में जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं? नहीं। नहाने के लिए जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं? नहीं जाते। नहीं जाते हैं। हाँ। एक कमरे में से दूसरे कमरे में को जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं? नहीं। नहीं ना? नहीं। अच्छा
अच्छा, अब आप ये भी बता दीजिए क्या उस दौर में ये मोटरसाइकिल थी? नहीं थी। अच्छा, वो दौर, उस दौर में क्या चलता था? पैदल और ऊँट वगैरह पैदल सवारी। या फिर ऊंटों से? हाँ ऊँट जो तो भी है, जानवर घोड़ा होते थे, था। जो भी जानवर उस दौर के होते थे उस पे सवारी होती थी ना? जी हाँ, और मैंने ये अपने होश तक देखा है कि लोग घोड़ों पे सफर किया करते थे। बिल्कुल सही बात। और आपके जमाने में भी साइकिल मुश्किल से किसी किसी के पास होती थी, और जिसके पास साइकिल होती थी उसको बड़ा अमीर समझा जाता था। मेरे गांव के अंदर नहीं था साइकिल। हम एक साइकिल आई थी हमारे गांव में ना। आपके पहले भी बैलगाड़ी, आपके जमाने में भी बैलगाड़ी चलती थी ना? बैलगाड़ी थी हाँ। तो फिर आपने ये बात क्यों की कि मेरे नबी को गाड़ी चलाने आती है क्या? अरे मेरे नबी की शान और अजमत का तुम क्या यार, मैं क्या ये कहना चाहता हूँ मौलवी साहब बात बता रहे हैं ना, उसकी बात हम बता रहे हैं। आपको बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं था। फिर वही बात, कौन कहता है कि इल्म नहीं था? एक मिनट तैयार करो। आप डर नहीं खाया जो बता सकेंगे कि आपका जहर का वजह क्या है? इसी तरह आपको नहीं आता था, बोलिए कि आता था कि नहीं आता था? अच्छा अगर ये आता था तो इल्म आपको था, और नहीं आता तो इल्म नहीं था। अच्छा ये बताइए, लगता है कि तुमने मेरे नबी की शान में बहुत सारी तौहीनें की है, शायद आपको तौबा की तौफीक हासिल नहीं होगी, और हो जाए तो अल्लाह बेहतर है। अब बोलिए, बोलने में कोई रोक टोक नहीं है। हमने तो कभी आप मुझे एक मिनट, आप मुझे ये बताइए कि हुजूर को ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। मैं तो ये कहता हूँ कि हुजूर को तो वो इल्म भी हासिल है जो आप कहते हैं कि 5 इल्म ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। 8 इल्म जो है जो ईमान मुफस्सल के अंदर जिक्र किया है ना, वो 8 इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है। वो किसी कौन कौन सा? कौन कौन सा? कौन कौन सा? ईमान मुफस्सल है। अरे आप बताइए, अरे आप उनका नाम लीजिए, खाली नाम लीजिए। ईमान मुफस्सल पढ़े हैं अरे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ा है, बस खाली नाम लीजिए आप, कौन कौन से इल्म हुजूर को हासिल नहीं है बस। आमनतु बिल्लाहि अरे व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बअदल मौत। ये 8 चीजों का इल्म जो है अल्लाह ने अपने पास रखा है। 8 चीजों का? हाँ। अच्छा, कुरान में मैंने 5 ही चीजें देखी थी, आपने 8 चीजें बता दी। अब वो जो 3 चीजें आपने बढ़ाई है जरा वो बता दीजिए कौन कौन सी है। आपने इसमें पढ़ा, मालूम है आपको क्या पढ़ा है आपने, और इसका तर्जमा क्या है? हाँ बोलिए। क्या इसका तर्जमा जरा करके बताइए आप जरा। आप ही बता दीजिए ना हमको। अच्छा वाह वाह भाई वाह, क्या तरतीब है, क्या तरतीब है आपकी कि पढ़ोगे आप और तर्जमा मैं बताऊंगा। वाह, तो लफ्ज कर दिए तो आप अगर बता दीजिएगा तो आपके इल्म कमी नहीं हो जाएगा। अरे भाई जब आप इतने बड़े हेमार हैं, आप जमाते देवबंद के, तो फिर आप ही को करना होगा ना इसका तर्जमा। आप तो कह रहे हैं कि हेमार है, तो हेमार से क्या पूछ सकते हैं, क्या बता सकते हैं? आपको पास इल्म हो तो आप बताइए ना। तस्लीम भी कर लिया कि हाँ वाकई में जमाते देवबंद का बहुत बड़ा हेमार हूँ, वो तो सही बात है। आपने जो, हाँ तो सही बात तो है, मैंने कब इनकार किया? जब मैंने भी आपको मान लिया, आपने भी मान लिया, तो फिर तर्जुमा भी आप कीजिए। क्या पढ़ा था आपने? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े जी, आमनतु बिल्लाहि पढ़े हैं। हाँ तो पढ़िए ना। हाँ तो उसका तर्जुमा बता दीजिए ना। मैं क्यों बताऊँ, आप बताएंगे ना। मैं बताऊंगा तो फिर मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। हाँ तो पढ़ के बताइए आप ही पढ़। चलिए मैं बता देता हूँ। मुसलमानों, आप हजरात भी जरा गौर से सुने, मैं इसका तर्जुमा भी बताता हूँ। जी हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद ही मैं बात को खत्म करता हूँ। अगर और भी बात करनी है तो कोई बात नहीं, और बात करेंगे, ठीक है? जी। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ईमान लाया अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, जी, यानी जो हमारे अल्लाह के रसूल है, नबी है, पैगंबर है, जी, और कयामत के दिन पर, और इस बात पर के दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा होता है सब तकदीर से होता है। जी।
اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے، یعنی پھر زندہ ہونا. جی ہم تم زندہ ہوں گے نا مرنے کے بعد؟ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، جب ہم کسی مسلمان کو دفن کرتے ہیں تو اس کی مٹی ڈالتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، یعنی اسی زمین سے پیدا کیا، اور پھر اسی میں جو ہے آپ کو واپس لوٹا دیں گے، یعنی اسی میں آپ کو پھر سے جانا ہے نا، اور پھر اسی سے ہم آپ کو زندہ کریں گے، یعنی دوبارہ اٹھائیں گے. جی یہی ہے نا مطلب اس کا؟ جی تو آپ نے جو کہا کہ یہ 8 چیزیں ہیں جو حضور کو نہیں معلوم تھی، حضور کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو کیا اس میں وہ ایسی کوئی چیز ہے؟ آپ نے کہا کہ حضور ان 8 چیزوں کو نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا نا. جی اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہا ہے آپ نے نہیں سمجھا کچھ بھی، آپ نے غلطی بولا. ہاں غلطی بولا. تو پھر آپ نے غلطی بولا، کتنی بار غلط بولیں گے آپ؟ اور آپ عالم ہیں اور بہت بڑے حمار بھی ہیں. ہاں تو حمار کے مطلب ہی ہوتا ہے غلطی، انسان کے معنی ہوتا ہے غلطی کرنے والا. سمجھ گئے نا؟ ہم تو صحیح میں غلطی کا غلطی تو ہوگا انسانی سے، دوسرے سے نہیں نہ ہوگی. ارے یار مولوی صاحب، میں تو سمجھ رہا تھا کہ انجانے میں بول رہے ہیں، واقعی آپ سمجھ کے بول رہے تھے. ہاں میں سمجھا کہ شاید دھوکے میں بول رہے ہو. خیر، اس میں ہے ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر. تو حضور ایمان نہیں لائے تھے، حضور اس سے لا علم تھے. ہاں بھائی، ایمان کیسے نہیں لائے تھے؟ آپ نے تو منع کیا نا، انکار کیا کہ یہ جو 8 چیزیں ہیں ان کا علم حضور کو نہیں تھا. علم کیسی تھی؟ اللہ نے دیا، ان کو عطا کیا، تب تو یہ ہوئے نا حاصل. تو آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ آپ جماعت دیوبند کے بہت بڑے حمار ہیں، اور آپ نے اس کو کیا، قبول کیا. قبول کرتے ہیں نا آپ بہت بڑے حمار ہیں. ہاں اچھا، کتنے سال پڑھے آپ دیوبند میں، یہ بتائیے آپ مجھے. دیوبند میں کتنے سال پڑھے؟ 3 سال. 3 سال. جی. کون کون سی جماعت پڑھی آپ نے؟ دیکھیے، ہفتم دورہ کیے اور 1 سال جو ہے حفظ کیے. 1 سال حفظ کیے. جی. اچھا اچھا یار، تب تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جانی چاہیے تھی. معلوم تو ہوا، اللہ کا فضل ہے، لیکن سب چیز کو معلوم نہیں ہے. یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہم کو سارے علم حاصل ہو گیا، وہ بھی نہیں کہیں گے. جو پڑھے ہیں. اچھا، نماز کے تو سارے مسائل یاد ہوں گے آپ کو؟ نماز کے تو سارے مسائل یاد ہوں گے آپ کو؟ نماز کے کسی میں بہت ضروری والی مسئلہ تو یاد ہے، لیکن ساری باتیں کہی گے تو اس میں بھی نہیں بتا پائیں گے. ہمارا پڑھا ہوا کتنا ہو گیا بتائیے نا؟ 80 کا 83 کا فراغت ہے، ابھی کیوں چل رہا ہے؟ 21-22 چل رہا ہے، تو سوچ لیجیے کتنا دن ہوا. تو پھر میں دیکھیے، ایک منٹ، جس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ بھول گئے، تو کیا میرے نبی کے علم کو بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہو؟ نہیں، وہ بات نہیں. چلیے، اب میں اپنے نبی کا تھوڑا سا کمال بتانا چاہتا ہوں، کیا سنیں گے؟ نبی کا اور میرے میں کا فرق ہے اس میں. سنیے، تو میں اپنے نبی کا تھوڑا سا علم غیب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا سنیں گے پیار محبت سے؟ بالکل ایک دم سنیں گے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ سنیں پیار سے. جی. تمام حضرات بھی سنیں. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 یعنی 179. جی. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، یعنی تمہارے میرے جیسے لوگ، یعنی عام لوگ. اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بالکل صحیح بات. صحیح بات ہے نا؟ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا.
नहीं नहीं सही है, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए दूसरी आयत पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरह निसा आयत नंबर 113 जी 113। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब इल्म अता कर दिया जो आप ना जानते थे, यानी नहीं जानते थे, यानी जो जानते थे वो तो जानते ही थे, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया, बता दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया। तो जिसका पढ़ाने वाला खुद खुदा हो, रब हो, फिर उसके इल्म में जो तनकीद करे, कोई कमी निकाले, उससे बड़ा शैतान कौन होगा बताइए आप। अच्छा ठीक है, एक बात ये है, एक मिनट सुनते रहे बस। अब आप मैं बात को खत्म करने वाला हूँ, वरना और खुद फंस जाओगे आप। और अल्लाह तबारक व तआला का आप पर बहुत बड़ा फजल है। ये इस आयत का पूरा तर्जमा हुआ। दूसरी आयत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। सूरह नहल आयत नंबर 89 ठीक। और हमने तुम पर ये कुरान उतारा जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। जी ये कुरान किस पर नाजिल हुआ? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम इस कुरान को नहीं समझ पाते, मगर हमारे नबी जानते हैं, समझते हैं कि कौन सी आयत का, कौन से लफ्ज का क्या माना है, और एक एक लफ्ज के कितने माना होते हैं। जी। और हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बिल्कुल सही बात। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म की जो तारीफें हैं वो आप पढ़ चुके होंगे। जी। अगर बिस्मिल्लाह के बाकी अगर वो तफसीर करना शुरू कर दें तो कहते हैं 70 ऊंट भर जाएंगे और तारीफ पूरी ना होगी, जी। बात पूरी ना होगी। समझे जनाब? जी। तो दरिया है, दरिया। ये मोहब्बत से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी। समझ गए जनाब? जी हाँ। हाँ सुनिए अब दूसरी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। सूरह जिन आयत नंबर 27। गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। बेशक बेशक। तो अब जनाब मुझे ये बताइए, जितने भी नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, उन सारे रसूलों में जो हमारे नबी की शान और अज़मत है, क्या किसी से छुपी हुई है? नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत है, जो शान है, क्या हम नहीं जानते कि हमारे नबी की जो अजमत है सबसे आला और अफजल है? बिल्कुल एकदम सही है। माशाल्लाह। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जब रसूलों को अपना गैब अता किया जी, तो क्या हमारे नबी को अता नहीं करेगा? कैसे नहीं करेंगे? ये तो एक मिनट, दूसरी आयत सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। सूरह तकवीर आयत नंबर 24। ये उन 24 के खिलाफ है जो 24 हमारे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, कहते हैं नबी गैब नहीं जानते। खुदा फरमाता है और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। बिल्कुल सही। जब अल्लाह ताला ने बताया तभी तो मेरे नबी गैब जानते हैं और गैब की बातें बताते हैं। जी। कोई बंदा, कोई शख्स चौराहे पर खड़ा है, जी। ऊपर से एक शख्स और आया और उससे पूछने लगा कि मुझे फला जगह जाना है। जब तक कि वो बंदा जानेगा नहीं, बता देगा क्या? नहीं बताएगा। नहीं बताएगा ना। अगर उसको इल्म होगा तब बताएगा, वरना कह देगा मैं भी मुसाफिर हूँ और खड़ा हूँ किसी के इंतजार में। तो किसी चीज के बताने के लिए उसका इल्म पहले होना जरूरी है। जी। मौलवियत पढ़ाने के लिए खुद मौलवी होना जरूरी है।
मुफ्तियत की पढ़ाई, मुफ्तियत का कोर्स पढ़ाने के लिए खुद मुफ्ती होना जरूरी है। कोई हाफिज किसी को मौलवियत नहीं पढ़ा सकता, कोई मौलवी किसी को मुफ्ती नहीं बना सकता। जी समझे जनाब? जी हाँ, और सुनिए, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये सूरह रहमान है। जी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रहमान ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, उन्हें माकाना व मायकून का इल्म अता किया, उन्हें हुजूर को जो है माकाना व मायकून का इल्म सिखाया, यानी जो कुछ हो गया और जो कुछ कयामत तक होने वाला है जी, उस सब का इल्म हमारे नबी को अता किया। ठीक है, जी। आयत फिर से पढ़ दूं अगर समझ में ना आया हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरह निसा आयत नंबर 113। उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी हमारे नबी को वो सब इल्म अता कर दिया, वो सब इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे, जिस पर देव के बंदरों का एतराज होता है कि नबी को ये नहीं मालूम, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम। जैसे तुम कह रहे थे 70 सहाबा का नहीं मालूम। हाँ समझे जनाब? जी तो क्या अल्लाह को भी नहीं मालूम था? जी। तो ये सारा इल्म मेरे नबी को मेरे रब ने बता दिया। अब कोई अगर उंगली उठा रहा है मेरे नबी की शान व अज़मत पर, तो मेरे नबी पर उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि रब की शान व अज़मत पर, रब की कुदरत पर, रब की अता पर उंगली उठा रहा है। समझे जनाब? अगर तौबा की तौफीक हो तो तौबा कर लेना, ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हो जाना। क्या आपने किसी बड़े से बड़े मुफ्ती से, किसी बड़े से बड़े आलिम से आप मेरी बात कराए अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी टॉपिक पर? देखिए सुनिए, पहले हाँ, सबसे पहली बात तो आपने इल्म गैब के सिलसिले में बार बार आयत जिक्र किया, है ना? हाँ, और आयत नाजिल हुई है कब, ये पता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं और सब मैं बताऊंगा। नबूवत मिलने के बाद आपको यह नाजिल हुई। अच्छा, ये दिया गया, मान लीजिए इल्म के बारे में। एक मिनट, और उसी कुरान के अंदर कई जगह ऐसे जिक्र है, तो ये सालून का अनिसा, आपसे सवाल करते हैं लोग क़यामत के सिलसिले में, तो आपने क्या कहा? इला रब्बिका मुंतहा, उसका इल्म जो है अल्लाह ही के पास है। ये आयत पता है ना? इसमें हिकमत है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सब पता है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं हुजूर का गुनाहगार उम्मती हूं। आयतों का जिक्र नहीं करना है जिससे इल्म का आपको इल्म गैब से इल्म नहीं है। अरे उसके बाद तौहीन कर चले यार, मुझे गुस्सा आने लगा तुम्हारी बातें सुन सुन के। जब देखो तो मेरे नबी का कमाल कहीं ना कहीं तुम घटाने के लिए लगे रहते हो। नहीं रे भाई, वैसे बात नहीं है। उनके इल्म के बाद और उनके हिदायत न दो, कोई शक शुबा नहीं कर सकता है। अरे लेकिन जहाँ तक अल्लाह की कुदरत पे आते हैं उस जगह में तो कहना पड़ेगा ना भाई। अल्लाह के जो, अरे चुप है तो यार, हाँ मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े हिमा